बट कुछ चीज़ें हमारी समझ के परे होती हैं। हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हम उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक we could hear outside somebody walking in that hallway. बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता है आई है, और मेरी इतनी गांड फट गई तभी के तभी मैं भागता हुआ पापा के कमरे में गया। आने के पहले ना एक वाइब्रेशन फील होती है कि कुछ कोई ऐसा आ रहा है और फिर दुब 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 मार रहा है। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 इयर्स 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। बहुत हॉन्टेड था वो। एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी। सो हेलो डार्लिंग्स, আমি কৌস্তভ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিউরিও ফাইট। আর আজকে কিউরিও ফাইটে তোমাদের জন্য থাকছে টপ 5 ইন্ডিয়ান ইউটিউবার যারা নিজেদের রিয়েল লাইফে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি ফিল করেছেন অথবা নিজেদের চোখে স্পিরিট বা ঘোস্টদের দেখেছেন। এই ভিডিওটাতে সেই সব ইউটিউবারদের সাথে ঘটা ঘটনাগুলো আমি তোমাদের জানাবো, আর সেই পার্টিকুলার ভিডিও ক্লিপটাও থাকবে যেখানে তারা নিজেদের মুখে নিজেদের সাথে ঘটা সেই হরর এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। কিন্তু তোমরা যদি কিউরিও ফাইটে নতুন হও, প্লিজ কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং। নাম্বার 5-এ আছে মুম্বাইকার নিখিল। মুম্বাইকার নিখিল একজন ইন্ডিয়ান ব্লগার উইথ ওভার 3.75 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স। আজ থেকে প্রায় 2 বছর আগে তার চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড হয় যার টাইটেল ছিল ওয়াজ ইট হন্টেড। এই ভিডিওটাতে নিখিল বেশ কয়েকটা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি নিজের ক্যামেরাতে ক্যাপচার করেছেন। অ্যাকর্ডিং টু নিখিল, তার বন্ধুর বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে কয়েকটা অ্যাবনর্মাল জিনিসপত্র ঘটছিল অ্যান্ড সেটা দেখার জন্যই মুম্বাইকার নিখিল তার ফ্রেন্ডের বাড়িতে যান। ইট ইজ দ্য মোস্ট হন্টেড ব্লগ ইন হিজ চ্যানেল অ্যান্ড তিনি এই ভিডিওটা বানাতে গিয়ে নিজেও বেশ ভয় পেয়েছেন, সেটা তার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। तो यहाँ से आवाज आती है? किस तरह की आवाज आती है? आप देखो तो सही, धप 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 धप। अभी तो नहीं आई। नहीं अभी आएगी। कोई है क्या? कितनी जोर से आती है? अरे ये तो कुछ नहीं है, उधर बैठे ये तो कुछ नहीं है। क्या बात करो? 6-7 टाइम ज्यादा आती है। मतलब ये तो कोई क्रैक भी आ गया दीवार में। हाँ ये देखो, वो देख रहा हूँ मैं। इसके पीछे एक लिफ्ट तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। क्या है इसके पीछे से? इसके पीछे क्या टैंक है। आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया वैसे 2 बार यहाँ से आवाज आई, ऐसे आवाज आई, बट अभी जैसे कैमरा चालू किया आवाज नहीं आ रही। But that was scary यार, मेरी पड़ गई एक्चुअली, झूठ क्यों बोलूँगा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। कितनी बार आती है रात में? आती है 3 बजे को आती है। चालू रहती है? 3 बजे तक। वहाँ जाओ, चलो चलो जाओ देखो, खोलो। There is nothing. कुछ नहीं। आवाज सुनी? आपने रिकॉर्डिंग सुनी? हाँ रिकॉर्डिंग आई। आई फाइनली 1 घंटा खड़ा था इधर, तभी आई। हाथ मारने वाली है ना? Can anyone explain this? ये क्यों हो रहा है? मेरे पूरे गूज़बम्स खड़े हो गए हैं। Do you have answer? No, I don't have. I don't have any answer. पाइप नहीं हिला था, मैं जब बाहर गया पाइप बिल्कुल नहीं हिला था। लिटरली एक साइड से आई, ये साइड से आई, ये साइड से। आई थिंक इट्स बीन अराउंड 3 आवर्स। या हाँ। नहीं हो रहा था, अभी अचानक हम लोग नीचे गए, फिर बुला के आ रही है। हाँ। अभी वापस आए, देखो 3-4 घंटे हो गए। और एक बात बोलो, आने के पहले ना एक वाइब्रेशन फील होती है कि कुछ कोई ऐसा आ रहा है और फिर दुब 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 मार रहा है। নাম্বার 4-এ রয়েছে করণ সিং ম্যাজিক। করণ সিং ইজ আ ইন্ডিয়ান ইউটিউবার যিনি তার চ্যানেলে ম্যাজিক ট্রিক আপলোড করেন। ওনার চ্যানেলে এখন প্রায় 490K সাবস্ক্রাইবার্স রয়েছে। রিসেন্টলি করণ সিং তার নিজের সেকেন্ড চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করেন যেখানে সময় রায়না এবং তার কয়েকজন ফ্রেন্ডের সাথে তিনি হরর স্টোরিজ নিয়ে আলোচনা করছিলেন অ্যান্ড অন দ্যাট ভিডিও তিনি নিজের সাথে ঘটা একটা প্যারানর্মাল এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করেন। ব্যাপারটা এরকম, করণ নিজের বন্ধুদের সাথে একটা ফার্ম হাউসে যান, সেখানে তার বন্ধুরা তাকে একটা হরর চ্যালেঞ্জ পারফর্ম করতে বলেন অ্যান্ড সেই হরর চ্যালেঞ্জটা পারফর্ম করতে গিয়ে তাদের সাথে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেটা তারা এখনো ভুলতে পারেননি। আর এই ঘটনাটা সত্যি খুব ভয়ের। तो उस बंदे ने बोला आपको बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10-10 हजार रुपए देंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10-10 हजार रुपया देंगे, बस 5 मिनट के लिए अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़नी है, सब। एंड जो सबसे बड़ा गूदा वाला इंसान था, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा था, उसने बोला कि
उसको बोला कि तू बोल, तू जाके खड़ा हो, क्योंकि तू सबसे कूल बन रहा था। उसने बोला यार मेरी सुबह फ्लाइट है, ये है वो है, वो कूल बनना शुरू हो गया कि मेरी तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। किसी और बंदे से पूछा तू कर, उसने बोला कि नहीं भाई मेरे को, मैं सच सच बता रहा हूँ मेरी फटती है। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट दिस। वन फॉर द टीम। मैंने अपना फोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपनी घर की चाबी छोड़ी, एंड हमने एक रूल बनाया दैट अगर मेरे को डर लगता है, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट नॉक ऑन द डोर, दैट इज ऑल आई हैव टू डू एंड दे विल हैव टू ओपन द डोर। और वो ऐसा दरवाजा होता है, हैंडल होता है ऐसे खींचने वाला, वो हैंडल था। तो मैं बाहर गया एंड मैं खड़ा हुआ। पहला 1 मिनट मैं बिल्कुल यहाँ वाला, जो यहाँ पे इस कमरे में हम थे, ये वाला कमरा यहाँ पे था, वहां पे मैंने सर टिका के मैं खड़ा हो गया कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं होता। कुछ 30-40 सेकंड हुए थे, पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि अंधेरा में फटती है, कुछ भी कर लो, दिमाग में भी इतना बैठ गया कि फटेगी। तो मैंने ना थोड़ी सी ऐसे हॉलवे में वॉक करनी शुरू कर दी, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहां पे जरा सी मूनलाइट आ रही थी, तो मैं उसके पास जाता जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे, मेरी आंखों की जो थी अंधेरे को गेट यूज्ड टू हो गई थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था। पहले तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन आंखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली 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 स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे, अंदर बैठे इन गांडुओं ने सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे। उन्होंने करा टक 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 कच 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 टक 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 कच 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 अंदर से मेरी फाड़ने के लिए। मेरी फट गई 1 सेकंड की, और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई, तेरी फट गई, तेरी फट गई। मैंने बोला बहनचो मेरी तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया मैं कमरे में, उन्होंने दरवाजा बंद करा। उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं करा यार, गांडू मत बनो, तुम चारों ने अंदर से दरवाजा मारा है, तुमने खच 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 करा है, तुमने हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं, अरे मैंने नहीं करा है, तुमने करा है। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था, जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। ही सेड मैं कसम खाता हूं करण, हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है, ना हमने खट 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 करा है, तूने करा है तो प्लीज बता दे। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था, और हम पांचों अपने कमरे में हैं। जो लाइट थी वो जरा सी ऐसी फ्लिकर करती है, एंड वी टर्न्ड द डोर एंड द डोर गोस पूरा टाइम। एंड व्हाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड देयर्स ऑल ऑफ अस आर इनसाइड, येट द डोर मूव्स। और उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक we could hear outside somebody walking in that hallway, and we could hear for an hour and a half। जैसे ही सूरज की पैरी गिरने आई, हम सब ने अपनी गांड हाथ में ली और हम वहां से भागे। नंबर 3 তে রয়েছে ফ্লাইং বিস্ট অর্থাৎ গৌরব তনেজা। গৌরব তনেজা ইজ আ ইন্ডিয়ান ব্লগার উইথ ওভার 5 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স। আজ থেকে প্রায় 1 বছর আগে ফ্লাইং বিস্ট তার চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করেন, যেটা টাইটেল ছিল শহীদ কি আত্মা দেতি হে পেহরা। এই ব্লগটাতে গৌরব তনেজা সিকিমের বাবা হরভজন সিং এর মন্দিরে যান। এখানে বলে রাখা ভালো, বাবা হরভজন সিং একজন ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার ছিলেন, যিনি মাত্র 22 বছর বয়সে আমাদের দেশের জন্য শহীদ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু এখনো বলা হয় যে তিনি নিজের দেশের জন্য ডিউটি করে যাচ্ছেন। এই পুরো ব্যাপারটাই ফ্লাইং বিস্ট নিজের ব্লগে প্রপারলি এক্সপ্লেন করেছেন, এবং তিনি এই প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে কি ভাবেন সেটাও তিনি জানিয়েছেন। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में, जो ऐसे सिपाही हैं भारतीय सेना के जो अभी तक ड्यूटी दे रहे हैं और भारत की सीमा को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। पीछे देखें वो भी लगा हुआ है। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाबा हरभजन सिंह बहुत ही यंग एज में 22 साल की उम्र में ये देश के लिए कुर्बान हो गए थे, और उसके बाद से मरणोपरांत इन्होंने ड्यूटी दी है देश के लिए। और बाकी स्टोरी आपको पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा प्लस माइनस फिल्म, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा इनके बारे में बताया गया है। और बाकायदा इनको जो है छुट्टी मिलती थी, इनकी पेंशन मिलती थी, इनको सैलरी मिलती थी, इनको घर छोड़ के आते थे। बट बीच में हुआ कि आर्मी में अंधविश्वास ना फैले, इसलिए उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई, क्योंकि कुछ लोगों ने केस कर दिया था कोर्ट में, अदालत से लेकर। काफी लोग जब जाते थे छुट्टी पे, हाँ, बहुत भीड़ इनके साथ जाती थी, फिर लेके आते थे।
तो काफ़ी मतलब वो धर्म में परिवर्तित होने लगा था। तो कुछ लोगों ने केस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब इनकी छुट्टी कैंसिल। तो फिर उसके बाद से बाबा ने 12 महीने ड्यूटी देना शुरू कर दी, 24/7 अब यही ड्यूटी दी। हाँ, तो कोई भी चाइना के पार, बॉर्डर के पार जो ऐसी गतिविधियाँ होती थी जिन पे शक होता था, पहले ही आर्मी को, नॉट ओनली इंडियन आर्मी को बट चाइना आर्मी को भी कोई बोलते थे सपने में आ जाते हैं। हाँ, आते हैं ताकि उनको भी पता था कि ये गतिविधि आपके हमें पसंद नहीं आ रही है, अलर्ट कर देते, ये गतिविधि पसंद में नहीं आ रही, तो फिर बातचीत के द्वारा सॉल्व कर लिया ताकि मैटर बहुत ज़्यादा बढ़े ना। तो इनकी जो है यहाँ पे पूरी सफाई होती थी, इनकी वर्दी यहाँ पे साफ करके रखते थे, इनके जूते यहाँ रखते थे। तो बोलते थे कि नेक्स्ट दिन अगर सुबह खोलते थे तो इनकी वर्दी गंदी होती थी, अभी भी होता है, उनके जूतों में मिट्टी लगी होती थी, इनकी जो चादर बिछाते थे उसमें सिलवटें पड़ी होती थी। तो ये सब चीज़ें वो अभी भी होती हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते होंगे, बट कुछ चीज़ें हमारी समझ के परे होती हैं। हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम इतने से हैं, स्पेस से अगर आप देखेंगे इंसान को ना, इतना सा भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम कभी कभी समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। तो वो इंसान की भूल हो जाती है कभी कभी। नंबर 2 আছে ট্রিগার্ড ইনসান। ট্রিগার্ড ইনসানের চ্যানেলে প্রায় 9.61 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স রয়েছে, মানে প্রায় 1 কোটি সাবস্ক্রাইবার্সের কাছাকাছি। ট্রিগার্ড ইনসান একজন রোস্টার, কিন্তু তিনি তার চ্যানেলে একটা সিরিজ আপলোড করেন যেটার নাম হচ্ছে স্টোরি টাইম ভিডিওস, যেখানে তিনি নিজের লাইফের পুরনো স্টোরিজগুলো শেয়ার করেন। রিসেন্টলি তিনি একটা ভিডিও আপলোড করেন যেটার নাম ছিল দ্য হন্টেড হোস্টেল। আর এই ভিডিওটাতে ট্রিগার্ড ইনসান নিজের মায়ের সাথে ঘটা একটা প্যারানর্মাল ইনসিডেন্ট আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। অ্যান্ড পার্সোনালি বলছি, এই স্টোরিটা শুনে আমার নিজের ভয় লেগে গেছে। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरनसी जलंधर में, पंजाब में, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी। तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो, एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। तो जब हम मतलब मैं वहाँ गई तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें। तो जब 1-2 स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं, अभी तक उस चीज़ का इफ़ेक्ट है मेरे पे। मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी, इतने साल हो गए मेरे को। सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था, कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था, हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे छल्ली। अबे साले। एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी। तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी, ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। टोपी को, बड़ी बहन को बहुत तेज प्रेशर आया, तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए। एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई। अब छोटी बहन छल्ली ने नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। 10 मिनट बीत गए। अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है, उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए, तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहां पे डब्बा पड़ा है कि नहीं। एंड वहां पे डब्बा पड़ा था, तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली, जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज हुआ कि ओ, बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची। एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले, मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है, 1 सेकेंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है, मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा। टोपी बाहर आई घबरा के, एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून, उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। अब ये तो एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। तो हेडगल पानी बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाज़ा खोला, उनके सामने ज़मीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूस बम्स आ रहे हैं। एंड हेडगल पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेडगल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर से ड्रॉअर के पास गई, कैंडल्स निकाल के
भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पे आके फेंट हो गई। हॉस्टल जो था मम्मी का वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट। ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे। नंबर 1 এ রয়েছে ইন্ডিয়া অ্যান্ড এশিয়ার মোস্ট সাবস্ক্রাইবড ইউটিউব চ্যানেল ক্যারিমিনাটি। ক্যারিমিনাটির এখন প্রায় 29.3 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স রয়েছে, অর্থাৎ প্রায় 3 কোটির কাছাকাছি। অ্যান্ড ক্যারিমিনাটির আরেকটা সেকেন্ড চ্যানেল রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে ক্যারি ইজ লাইফ। এখানে তিনি বিভিন্ন টাইপের লাইভ স্ট্রিমিং গেমিং ভিডিওস আপলোড করেন। অ্যান্ড এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেই ক্যারিমিনাটি নিজের সাথে ঘটা একটা হন্টিং এক্সপিরিয়েন্স খুব ডিটেলে শেয়ার করেছেন। তোমরা ক্যারিমিনাটি নিজের মুখ থেকেই শুনে নাও তার সাথে কি ঘটেছিল। क्या था मैं बताता हूँ। मैं गया अपने किचन में, ठीक है। किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट और मैंने उठाया अपना मैंगो शेक जो बना हुआ था। रात की बात है, ये स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, यही ग्लास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है। और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना, एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है। शुक करके आवाज आई, मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता है आई है। एंड इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज कि भूत मेरे साथ खेलेगा। और मेरी इतनी गांड फट गई तभी के तभी मैं भागता हुआ पापा के कमरे में गया। मैं देखा पापा सो रहे हैं, और ऐसे सोते इंसान को उठाने का मन थोड़ा ना करता तुम्हारा, जस्ट बिकॉज तुम्हारी गांड फट गई, है ना। बहुत चूतिया लगेगी ये बात। इज्जत इज्जत होती, भूत अपनी जगह, इज्जत इज्जत अपनी जगह, है ना। तो मैंने लिटरली हाथ धो रहा था तब, मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हो गया कमरे में। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया, फिर मैंने देखा सामने किचन में, अब किचन में बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन हो गया। पता है कैसे? लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, बिकॉज एक पता नहीं लाइट का फ्यूज खराब था और साली वही ऑन कर रखी थी मैंने, वो ब्लिंक कर रही है। सामने सिंक में मैं हाथ धो रहा था तो वो पानी खुला हुआ छूट गया था, तो पानी बह रहा है सिंक में से, समझ रहे हो। सिंक में से पानी बह रहा है, लाइटें फ्लैश कर रही है। मेरे को क्या करना है, हाथ तो धो लिया मैंने, मेरे को वो ऑफ करना है सिंक, फिर वो सामान लेके मुझे यहाँ वापस ऊपर आना है। और ऊपर आने के लिए भी बहुत स्केरी है क्योंकि सीढ़ियों की भी लाइट नहीं जल रही थी। तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो कैसे, मैं जैसे ही उठाया वो और ऊपर बढ़ना शुरू किया, ठीक है, मेरे को तब पता चला कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है, ठीक है। वो पूरे उस सीढ़ियों से लेके अपने कमरे तक आने के रास्ते में तब पता चला मुझे, सही में, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बात, इसके अंदर एक भी चीज झूठ होती है, कुछ बना रहा होता मैं बता देता, पर एक भी चीज नहीं बना रहा हूं मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट बोथ केसेस हैं, समझ रहे हो। সো দ্যাটস দ্য ভিডিও গাইস। তোমাদের এই 5 জন ইন্ডিয়ান ইউটিউবারের মধ্যে ফেভারিট কে সেটা কমেন্ট করে জানাও। তোমরা কি এই ভিডিওটা সেকেন্ড পার্ট চাও? যদি এই ভিডিওটাতে 300+ লাইক হয়ে যায় তাহলে আমি এই ভিডিওটার সেকেন্ড পার্ট বানাবো। তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হও তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে নাও, যাতে ইন ফিউচার প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। তাহলে চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই, স্টে কিউরিয়াস because I feed your dark curiosity. Good night, horror dreams.